السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حیدرآباد میں کانگریس کا CWC اجلاس، بی جے پی کا لبریشن ڈے کا انعقاد۔ صدر مجلس نے کہا بی جے پی حیدرآباد کی تاریخ پر جھوٹ کا لیتی ہے سہارا۔ اگر سردار پٹیل نہ ہوتے تو تلنگانہ اتنی جلدی آزاد نہ ہوتا، امت شاہ کا لبریشن ڈے کے موقع پر خطاب۔ پی ایم مودی نے 13,000 کروڑ روپے کی پی ایم وشوکرما اسکیم کا کیا آغاز، میگا کنونشن سینٹر کا کیا افتتاح۔ اپنی سالگرہ کے موقع پر نریندر مودی نے کیا دہلی میٹرو کا افتتاح۔ دہلی میٹرو کے افتتاح میں اروند کیجریوال کو مدعو نہ کیے جانے پر عام آدمی پارٹی ہوئی ناراض۔ لیبیا کا درنا شہر سیلاب سے بے حد متاثر، مرنے والوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی، 10,000 سے زائد افراد ابھی بھی لاپتہ۔ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا روس کا دورہ جاری، فوجی نمائش کا کیا مشاہدہ۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد میں قومی یکجہتی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ اور بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر مجلس نے کہا کہ حیدرآباد کا بھارت میں انضمام ایک پولیٹیکل انٹیگریشن ہے۔ صدر مجلس نے نہرو کے اس بیان کو بھی پیش کیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ حیدرآباد کی تاریخ پر بی جے پی جھوٹ کا سہارا لیتی ہے اور اس میں کانگریس بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ترقی میں اقلیت اور آدیواسی اور دلتوں کا ہاتھ ہے، جبکہ بی جے پی حکومت پورا صحرا اپنے سر باندھتی ہے۔ صدر مجلس نے امت شاہ سے عابد حسن سے متعلق سوال بھی کیا، جنہوں نے جے ہند کا نعرہ دیا تھا۔ صدر مجلس نے کہا کہ نظام کی حکومت میں عابد حسن نے جے ہند کا نعرہ دیا تھا اور وہ سبھاش چندر بوس کے ساتھ جاپان سے جرمنی بھی گئے تھے۔ صدر مجلس نے آر ایس ایس پر بھی تنقیدیں کی۔ حاصل کرتے یہ بات آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ ہمارے بھائی نے مجموعے میں سے کوئی بات ایسی کر دی، اچھا یہ بی جے پی بولتی کہ انہیں رضاکار، ہم امت شاہ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، امت شاہ صاحب کیا آپ عابد حسن کے نام کو جانتے ہیں؟ ہم آر ایس ایس کے یہ سنگھیوں سے پوچھنا چاہتے جو صبح اٹھتے کہ 90 سال چڈی پہنے، آج کل ذرا پینٹ پہن رہے، بتاؤ کیا تم عابد حسن کو جانتے ہو؟ کون تھے عابد حسن؟ عابد حسن حیدرآباد کے تھے جو نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ تھے۔ جب بوس جرمنی سے جاپان سبمرین میں گئے تو کون تھا مسلمان؟ یہ عابد حسن تھا۔ یا آج ہم جے ہند کا جو نعرہ لگاتے، کون بولا یہ نعرہ؟ عابد حسن نے دیا۔ حیدرآباد کے تھے، کیوں دیا؟ نظام کی حکومت تھی مگر بھارت کا تھا معاملہ، بھارت کا معاملہ تھا، اور آج آپ ہم پہ انگلی اٹھاتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم بار بار بولتے کہ نہرو نے کہا تھا کہ حیدرآباد از واٹ مائکرو کازم آف انڈین کلچر، نہرو نے کہا تھا۔ ان کو خیر نہیں معلوم۔ اب رضاکار تو چلے گئے، اب گوڈسے اور ساورکر کی اولاد باقی ہے، ان کو بھگانا ہے۔ گوڈسے اور ساورکر کی ابھی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین قومی یکجہتی ریلی مناتی ہے اور مستقبل میں بھی اسے مناتی رہے گی۔ امت شاہ اور سونیا گاندھی کی حیدرآباد آمد پر صدر مجلس کا کہنا تھا کہ سیاسی لیڈرز کو حیدرآباد کا رخ کرنا چاہیے اور یہاں کی بھائی چارگی کو محسوس کرنا چاہیے۔ انڈیا الائنس میں دعوت نہ دیے جانے پر صدر مجلس نے کہا کہ مجلس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور انڈیا الائنس میں صرف مجلس ہی نہیں بلکہ کئی دیگر پارٹیاں بھی انڈیا الائنس کا حصہ نہیں ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ انہوں نے کے سی آر کو تیسرا فرنٹ بنانے کی صلاح بھی دی ہے۔ پبلک میٹنگ ہمارے پارٹی کا ہی پروگرام ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، تو کرنا چاہیے، ڈیموکریسی ہے۔ تلنگانہ کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہیے سب کو، آ کر یہاں کی بھائی چارگی کو دیکھنا چاہیے،
मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना परवाह है कि हमको नहीं बुलाया गया, बल्कि इसमें तो बहन मायावती भी नहीं है, केसीआर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के कई पार्टीज नहीं है, इसमें कई हिंदी हार्टलैंड के, महाराष्ट्र के जो छोटी पार्टियां जिनका एक बहुत बड़ा रोल है वो नहीं है। तो अब ये लोग सेल्फ स्टाइल सेकुलरिज्म के चौधरी हैं लोग, तो उनको मुबारक हो, उनका जो भी कर रहे हैं, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है। हमने तो हमारे मुख्यमंत्री से जब हमने बात की थी, उनसे हमने कहा कि आप इसको लेकर आगे बढ़िए, पेशरफ करिए और एक थर्ड फ्रंट बनाइए जिसमें आप खुद टीआरएस होगी, दूसरे जो पार्टीज बाहर है उनको लीजिए। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम इस देश में भी है और मैं समझता हूं कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को अगर केसीआर लीड लेंगे, उसको वो फुलफिल कर सकेंगे, फिल कर सकेंगे। अब नहीं मालूम वो क्या करेंगे, वो बेहतर बोल सकेंगे, पर मेरा मानना यह है कि थर्ड स्पेस के फ्रंट के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है जो ये INDI अलायंस इसको फिल नहीं कर पा रहा है। अगर आप हमारे पार्लियामेंट की स्पीचेस को देखेंगे तो मैंने एक नहीं 2 से ज्यादा मर्तबा मैंने इस बात का डिमांड किया है कि 50% की जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको ब्रीच करने की जरूरत है और 50% की लिमिट को ब्रीच इसलिए करना है क्योंकि जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है ओबीसी को, वो समाज में लोग 80% के करीब हैं, तो 80% को 27% कैसे देंगे आप? तो उसको ब्रीच करना बहुत जरूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार एक पार्लियामेंट में बिल लाएगी ताकि उस 50% लिमिट को ब्रीच किया जा सके। नए रोहिणी कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब ये सरकार बताए कि इस पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को रखे, पार्लियामेंट में टेबल करे और उस पर चर्चा कराए और बताए देश को कि उस रिपोर्ट के जो भी रिकमेंडेशंस हैं या फाइंडिंग्स है उस पर सरकार क्या करने वाली है। देश को नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की जरूरत थी क्योंकि हम जब देख रहे हैं जो पार्लियामेंट की जो खूबसूरत हमारी पुरानी इमारत है उसका फायर सर्विसेज का क्लियरेंस नहीं है उसके पास, ये कोई बोलता नहीं है और जब पूरे 540 मेंबर्स बैठ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यकीनन एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत थी, मगर नई बिल्डिंग बनाने से पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होगी, ये पार्लियामेंट के चलने से होगा, ये पार्लियामेंट के स्पिरिट में सरकार को काम करने के तरीके से होगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में बिल ला लें और दूसरे दिन उसको पास कर लें। तो पार्लियामेंट चलना भी चाहिए। पार्लियामेंट की इमारत, नई इमारत की खूबसूरती उसकी स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि उसके चलने में होगी। मेरा सवाल, अब वो नहीं गए तो वो बता देंगे, मगर अगर सरकार जब चलाएगी पार्लियामेंट में, वर्ल्ड पार्लियामेंट से नई पार्लियामेंट जाएंगे तो हम जाएंगे उसमें। बल्कि 2019 के चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री ने, वजीर आजम ने एक ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट लाइब्रेरी में बुलाई थी, तो मैंने ही सबसे पहले कहा था, उसमें वाहिद मेंबर था, ने कहा कि हमको नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नहीं मालूम कि मेरे टेन्योर में होगा, बट मैं कोशिश करूंगा। तो खैर वो नई बिल्डिंग बन चुकी है। अब कोई नहीं गया है, किस वजह से नहीं गया है तो वो जाने। सर एक अंतिम सवाल। दूसरी जानिब अमित शाह ने हैदराबाद में एक रैली से खिताब करते हुए तारीखी वाकयात को पेश किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने पहले ही तारीखी वाकयात पर तनकीद की हैं। अमित शाह ने खिताब में एक वाक़े का जिक्र करते हुए कहा है कि निजाम की फौज ने भारतीय तिरंगा लहराने की पादाश में गोलियां बरसाई थीं जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। बीजेपी लीडर तरुण चुग ने भी जहर उगला। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत MIM से डरती है और हैदराबाद के इंतजाम को सरकारी तौर पर नहीं मनाती। इन्होंने कहा कि हैदराबाद भारत का मातृभूमि है, यानी कि भारत का हिस्सा है, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि हैदराबाद न सिर्फ भारत का हिस्सा है बल्कि भारत के बेहतरीन शहरों में इसका शुमार भी होता है। हैदराबाद में कौमी यकजहती रैली से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने निज़ाम के दौरे हुकूमत की खामियां भी पेश की। इन्होंने कहा कि निज़ाम की हुकूमत में जागीरदाराना निज़ाम था जिसमें हिंदू और मुसलमान जागीरदारों में शामिल थे और कई ऐसे मुसलमान ख़ानदान थे जो इंतहाई गरीब थे और ये मुसलमान निज़ाम के खिलाफ भी थे, मगर बीजेपी इस पर कुछ कहना नहीं चाहती। हासिल करते, ये बात आपको समझाना जरूरी समझता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमारे भाई ने मजमे में से कोई बात ऐसी कर दी। अच्छा, ये बीजेपी बोलती कि इन रजाकार, हम अमित शाह से पूछना चाह रहे, अमित शाह साहब,
क्या आप आबिद हसन के नाम को जानते हैं? हम आरएसएस के ये संघियों से पूछना चाहते जो सुबह उठते कि 90 साल चड्डी पहने, आजकल जरा पैंट पहन रहे। बताओ, क्या तुम आबिद हसन को जानते हो? कौन थे आबिद हसन? आबिद हसन हैदराबाद के थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। जब बोस जर्मनी से जापान सबमरीन में गए तो कौन था मुसलमान? आबिद हसन था। ये आज हम जय हिंद का जो नारा लगाते, कौन बोला ये नारा? आबिद हसन ने दिया। हैदराबाद के थे। क्यों दिया? निजाम की हुकूमत थी, मगर भारत का था मामला, भारत का मामला था। और आज आप हम पे उंगली उठाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम बार बार बोलते कि नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद इज व्हाट माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन कल्चर, नेहरू ने कहा था। इनको खैर नहीं मालूम। अब रजाकार तो चले गए, अब गोडसे और सावरकर की औलाद बाकी है, इनको भगाना है। नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अपनी सालगिरह के मौके पर विश्वकर्मा स्कीम का आगाज किया। विश्वकर्मा जयंती की याद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को रिवायती कारीगरों के फायदे के लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम का आगाज किया। 77वीं यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि हुकूमत जल्द ही रिवायती दस्तकारी में हुनरमंद अफराद के लिए एक स्कीम शुरू करेगी। अपनी 73वीं सालगिरह पर वज़ीर आज़म मोदी ने विश्वकर्मा स्कीम का आगाज किया। मोदी ने द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आगाज के दौरान 18 पोस्ट टिकट और टूल किट का भी आगाज किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया और मेट्रो मुलाजमीन और मुसाफिरों से बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी सालगिरह की 73वीं सालगिरह के मौके पर द्वारका सेक्टर 21 से एक नए मेट्रो स्टेशन यशु भूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन की तोसी का इफ्तिताह किया। ज़राए के मुताबिक पीएम मोदी ने धोलाकोन स्टेशन से मेट्रो की सवारी की। इस मौके पर मेट्रो में ख़वातीन और कमसीन बच्चों ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली मेट्रो के इफ्तिताह पर आम आदमी पार्टी सख्त नाराज है। रुकन असेंबली व आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी मार्लिना ने कहा है कि बीजेपी ये कहती है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बेहतरीन सियासी लीडर हैं, मगर इस लीडर ने दिल्ली में मेट्रो के इफ्तिताह के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मद्दू नहीं किया, जबकि दिल्ली मेट्रो की तामीर में दिल्ली सरकार का भी हिस्सा है। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन की तोसी के इफ्तिताह के मौके पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को दावत न दिए जाने पर आम आदमी पार्टी के वज़ीर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सिर्फ एक हफ्ता कबल पीएम मोदी ने आलमी रहनुमाओं के सामने कहा था कि वासुदेव कुटुंब यानी दुनिया एक खानदान है, जबकि आप अपने मुल्क में 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आला को इफ्तिताह में मदऊ नहीं करते। इन सब के बीच दिल्ली में बेरोजगारी दिवस मनाया गया। दर्जनों बेरोजगार नौजवानों ने दिल्ली में सड़कों पर मिर्ची फरोख्त की और बूट पॉलिश की दुकान में भी खोली। उनका कहना था कि मोदी के दौरे हुकूमत में बेरोजगारी इंतहाई ऊंची सतह पर पहुंच गई है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आगाज पर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमारे मुल्क में विश्वकर्मा को वो शख्स समझा जाता है जिसने हमारे आसपास की हर चीज को तख्लीक किया। वो माहिर कारीगर है। हुनरमंद लोग हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ और हमारे साथ रहते थे। इन्होंने दरहकीकत हमारी मईशत को खुद कफील और पैदावारी बनाया। इन्होंने कहा है कि यही वजह है कि 500 साल पहले भी भारत आलमी रहनुमा और एक दौलतमंद अमीर मईशत था जिसकी मसनूआत की तलाश की जाती थी। In our country, Vishwakarma is considered to be the person who created everything around us. He's the master craftsman. He's the one who gives skills of all kinds to our people. And that is why Vishwakarma Jayanti is a very important day which stands for those skills with which our economy
in small groups at the panchayat level, at the town level, have all had self-sufficiency. We had our own blacksmiths who made things out of iron and metal. We had our own jewelers who made our jewels. We had our own potters who made our pots and household equipments. We had our own silver and other workers. And for those of us who live next to a river or to a seashore, even fish nets were made by these able, nimble hands. So these crafted, well-skilled people lived around us, with us, along with us. And they actually made our economy very self-sufficient and very productive. That is why even 500 years ago in लीबिया के शहर दरना में इमदादी काम जारी है। दरना में सैलाब से मरने वालों की तादाद 11,300 को पार कर चुकी है। अभी भी इमारतों से लाशों का मिलना जारी है। आज यहां एक तबाहशुदा महल्ले की इमारत में इमदादी कारकुनों को ज़ोहर की नमाज अदा करते हुए देखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 10,000 से ज्यादा अफराद अभी भी लापता हैं। लीबिया में हर तरफ तबाही के मंजर हैं। बदतरीन सैलाब के बाद यहाँ के कई कस्बात और अजला पानी में बह गए हैं। कई इलाकों में अभी भी मेडिकल सहूलतें नहीं पहुंच पाई हैं। यहाँ की सैकड़ों की आबादी लापता बताई गई है। तिब्बी सहूलत की सरबराह ने कहा है कि लीबिया का अलबैजा हॉस्पिटल मामूल के मुताबिक काम करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। सैलाब की वजह से इसके कुछ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। अब्दुल रहीम माजिक ने मजीद कहा है कि 10 सितंबर को तूफान डैनियल की शदीद बारिश के दौरान अस्पताल की निचली सतह में पानी भर गया था, जिससे तिब्बी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था। एक हफ्ता गुजरने के बाद भी अस्पताल मुतासिर है। इन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल को नाजुक और दायमी केसेस मिल रहे हैं, जिन्हें दरना से रेफर किया जा रहा है। शुमाली कोरिया का रहनुमा किम जोंग उन ने इतवार को रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में एक फौजी नुमाइश का दौरा किया। यह वीडियो रूस की प्रोमिस्की इलाके के गवर्नर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की। वीडियो में किम को एक कंपनी में एक्सपो के इर्द गिर्द चहलकदमी करते हुए खत्ते में तैयार किए गए बगैर पायलट के फौजी साजो सामान को देखते हुए देखा जा सकता है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसां एजेंसी का कहना है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा जो शाज़ो नादिर ही अपना मुल्क छोड़ते हैं का ये दौरा शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की की तारीख में दोस्ती और एक जहती और ताउन के एक नए दौर का आगाज करेगा। 6वें चाइना हेलीकॉप्टर नुमाइश इतवार को शुमाली चीन के त्याजिन म्यूनिसिपैलिटी में 4 रोजा तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसने हजारों ज़ायरीन को महसूर किया। तकरीबन 1,60,000 मुरब्बा मीटर के नुमाइशी रकबे पर मुहित एक्सपो में कुल 65 हेलीकॉप्टर और बगैर पायलट के फिजाई गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गई थीं, जिसमें 350 से ज्यादा नुमाइश कुनिंदगान को अपनी तरफ मुतवज्जे किया था, जिनमें कई बड़े आलमी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल थे। इस मौके पर हेलीकॉप्टर्स अपने करतब भी दिखाए, जिन्हें देखकर अवाम दंग रह गई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद में कांग्रेस का CWC इजलास, बीजेपी का लिबरेशन डे का इनेकाद। सदर मजलिस ने कहा, बीजेपी हैदराबाद की तारीख पर छूट का लेती है सहारा। अगर सरदार पटेल न होते तो तेलंगाना इतनी जल्दी आजाद ना होता। अमित शाह का लिबरेशन डे के मौके पर खिताब। पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा स्कीम का किया आगाज। मेगा कन्वेंशन सेंटर का किया इफ्तिताह। अपनी सालगिरह के मौके पर नरेंद्र मोदी ने किया दिल्ली मेट्रो का इफ्तिताह। दिल्ली मेट्रो के इफ्तिताह में अरविंद केजरीवाल को मदऊ न किए जाने पर आम आदमी पार्टी हुई नाराज।
لیبیا کا درنا شہر سیلاب سے بے حد متاثر، مرنے والوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی، 10,000 سے زائد افراد ابھی بھی لاپتہ۔ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا روس کا دورہ جاری، فوجی نمائش کا کیا مشاہدہ۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔